Hello, very good morning, dear students. After the first two lectures of nomenclature of alcohols and phenols, we have reached to the topic which is called as methods of preparation of alcohols and phenols. But before starting with the methods of preparation of alcohol and phenols, I would briefly like to take up the structure. I'll take a moment to discuss the structure of alcohol and phenols. So here we have structure of methanol यानी कि alcohol. Carbon here is sp3 hybridized because it has all four single bonds here. Three single bonds attached to hydrogen and one single bond of carbon is attached to oxygen. So when carbon is having all the four single bonds, obviously this carbon must be sp3 hybridized. And further it is attached to oxygen. Oxygen is again attached to hydrogen on one side and carbon to another side. And two lone pair of electron are shown here. Two lone pair of electron are shown here and oxygen is attached to two single bonds. That means there is no double bond in case of oxygen also. So it's also sp3 hybridized. The bond angle in carbon, oxygen, hydrogen is 108.9 degree, which is very close to 109 degree 28 minutes, which is the usual bond angle in sp3 hybridization, and bond angle between carbon and oxygen is 142 picometer. And all the bond in the alcohol you can see very clearly are single bonds. ठीक है. So similarly we have structure of phenol also, and in the case of phenol also the only change that we have here is instead of having CH3 group, we have substituted this group with the benzene and this become phenol. Phenol is what? Like I've told you in the nomenclature, phenol is that when benzene is directly attached to OH group, hydroxy group, this become phenol. But let me tell you, in case of benzene, all the carbons are what? sp2 hybridized. All carbons are sp2 hybridized. So it's a sp2 hybridized carbon. But oxygen is certainly sp3 hybridized because oxygen on both the sides is attached to single bond and there are two lone pairs of electron. Right? So this is structure of phenol. I'm sure this is clear to you, and you can see one thing in comparison in them, that in case of alcohol, or specifically if I say methanol, carbon oxygen bond length is 142 picometer, whereas in case of phenol, carbon oxygen bond length is 136 picometer. It is slightly shorter in length as compared to carbon oxygen bond length in case of alcohol, because in case of phenol there is a benzene and benzene undergo resonance or undergo resonating structures or show various canonical structures, due to which this bond length between carbon and oxygen becomes bit smaller. Moreover, in case of benzene, this carbon is sp2 hybridized and sp2 hybridized orbitals are smaller, so the bond length has to be smaller as compared to carbon oxygen bond length in alcohol. I'm very sure you must have understood structure of alcohol and phenol so far as their orbital pictures are concerned. Now come to our main part of the chapter, that is called as methods of preparation of
alcohol and phenol. Comes to first method of preparation of alcohol and phenol. First method is very easier. That is that you have to prepare alcohol and phenol from haloalkanes, right? Alcohol and phenol from haloalkanes. You have studied this method actually in chapter alkyl halide and aryl halide also. You have read this in alkyl and aryl halide also. So here it has been shown that CH3CH2Br when react with aqueous KOH, तो OH substitute this Br because bromine being more electronegative than carbon, this bond shifts to the carbon and bromine is substituted out. When this bond goes to bromine or shifts to the bromine, this carbon develops what? Positive charge, and KOH may this OH negative have negative charge and potassium has positive charge. So this OH attack at this carbon result in formation of CH3CH2OH. QH is ionic in nature, so I'll not like it here slightly negative. I would write it here full negative charge because potassium hydroxide is ionic in nature. Whenever a substance is ionic in nature, you don't have to write slightly positive and slightly negative charge. You must write full positive and full negative charge. Got it, Pacha? So OH negative is having a negative charge which attack at this positively charged carbon. So OH get attached to the CH2 part. So we get what? CH3CH2OH and Br which comes out combined with potassium to give you potassium bromide. This is what we have already studied in alkyl and aryl halide. Similarly, the second equation that has been given here is, but this is iodomethane or methyl iodide when it happens to reacts with moist silver oxide. It is written AgOH but it is read as moist silver oxide. Moist silver oxide में जो OH नेगेटिव है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देगा क्योंकि ये बॉन्ड जो है आयोडीन पे शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली दिस कार्बन इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्ज एंड OH negative is going to attack at positively charged carbon. We get CH3OH. So Ag plus iodine, you get what? Silver iodide along with the major product alcohol, because we are preparing what? We are preparing alcohol and phenol. I'm very sure this is clear to you. Got it, Pacha? Now we have second method of preparation of alcohol and phenol, that is preparation of alcohol and phenol from alkene. This can be done by three methods. I have written these three methods first of all. First method is by hydration of alkene. This we have done in the +1 standard. Second method is by hydroboration oxidation of alkene. And third method is by oxymercuration reduction, right, of alkene. Now let's come to first method which you have done in the +1 standard also, that is by hydration of alkene. ठीक है, so let's see how by hydration of alkene के साथ हम alcohol को prepare करते हैं. ठीक है,
बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में जब भी किसी अल्कीन में हम वाटर को पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो जो एक पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ ऐड हो जाता है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो दूसरी तरफ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे तो एक सबसे सिंपल डबल बॉन्डेड अल्कीन है, यानी कि 2 कार्बन वाली, यानी इथीन है। तो इसमें मैं कोई आपको दोनों चॉइसेस दे सकता हूँ। आप चाहे हाइड्रोजन को इस कार्बन से अटैच कर दीजिए, चाहे इस कार्बन से जोड़ दीजिए। हाइड्रोक्साइड को चाहे इस तरफ लगा दीजिए, चाहे इस तरफ लगा दीजिए, लेकिन दोनों एक तरफ नहीं लगाने। अगर आप हाइड्रोजन को इधर लगा रहे हैं ये CH3 हो जाएगा, और OH को इस तरफ लगा रहे हैं तो ये CH2OH हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म पे आते हैं अभी। तो मैकेनिज्म में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। तो आपने एक तरफ से वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया अल्कीन में, तो दैट इज़ वाई द मेथड इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में इक्वेशन ए दी हुई है, ये सबसे सिंपल अल्कीन थी, सिंपलेस्ट अल्कीन थी, इथीन। अगर आप प्रोपीन लोगे तो फिर आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन या मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता है कि अनसिमेट्रिकल रेजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में यानी प्रोपीन में ऐड करने को कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल रेजेंट को, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन का नंबर इक्वल नहीं होता। लाइक ये प्रोपीन देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, जो सेकंड नंबर पे कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन का नंबर जो है इक्वल नहीं है, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में कहा गया कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल रेजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, दैट गेट्स एडेड टू that carbon of double bond which has got lesser number of hydrogen। यानी कि OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा और फिर हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच होगा। मैकेनिज्म में बता दिया जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन जो है वो यही है, इट स्टेट्स दैट whenever negative part of addendum, or you can say it states that whenever unsymmetrical reagent means a reagent which has got positive and negative charge. Now I repeat, whenever unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of addendum goes to that carbon of double bond which has got lesser number of हाइड्रोजन। सो हाइड्रोक्साइड बचा इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और जो H बचेगा वो कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CHOH। देखिए इधर प्रोडक्ट में CH3 CHOH और ये H इस कार्बन के साथ CH3। तो यू गेट व्हाट, प्रोपेन टू ओल। दिस इज Markovnikov addition, Markovnikov rule के accordingly. This you have done in the 11th standard also. Water को we have deliberately written as HOH. This is water otherwise, so that we can show that hydroxide part has negative charge and hydrogen has got what, positive charge.
Now I have another unsymmetrical alkene, and I'm adding water because we are studying hydration of alkene and we have to prepare alcohols basically. So whenever this unsymmetrical reagent is added to this unsymmetrical alkene, because carbon double bond carbon do not have equal number of hydrogen, negative part of addendum यानी कि hydroxide goes to that carbon of double bond which has got lesser number of or no hydrogen at all. तो OH यहाँ पे लग जाएगा, ये लग गया तो ये आपके पास टर्शरी बुटाइल अल्कोहल हो गया. आप नॉमेनक्लेचर आपको 2 लेक्चर डेडिकेट करें नॉमेनक्लेचर के, तो वहाँ पे आपको बताया था कि ये टर्शरी बुटाइल अल्कोहल है. आप इसका यूपिक नेम लिखना चाहते हैं तो यूपिक नेम भी लिख सकते हैं. अब ये जो मैकेनिज़्म है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बट मैकेनिज़्म से पहले ये इक्वेशन मैंने मैकेनिज़्म में भी दोबारा से लिख दी है. लेट्स सी दिस. तो आई हैव डेलिबरेटली रिटन द इक्वेशन कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब वाटर को ऐड किया गया तो नेगेटिव पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन के साथ लगेगा विच हैज़ गॉट lesser number of hydrogen. You get propane 2-ol. This is the product. Now we have to take up the mechanism, which is very very important. Mechanism में जो step 1 है, that's a formation of carbocation. तो you might have seen के ये जो reaction है सारा का सारा hydration of alkene है. This is taking place in the presence of what? Concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid in the water. Concentrated sulfuric acid is a strong acid. When it is put in water, it ionizes itself as hydrogen ion and sulfate ion. Now you have water also. Because you are studying hydration of alkene. आप alkene की hydration study कर रहे हो तो water तो already reaction में होगा ही होगा. तो water के oxygen के ऊपर water का structure आपने chemical bonding में पढ़ा हुआ है. oxygen के ऊपर 2 lone pair of electron होते हैं, तो एक lone pair of electron जो है hydrogen के ऊपर attack कर देगा तो आपके पास H3O+ आ जाएगा, क्योंकि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया? H3O+ बन गया. दैट इज़ व्हाट? हाइड्रोनियम आयन. तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन आ गया. अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये वाला जो हाइड्रोनियम आयन है, दिस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन. तो ये प्रोपीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के कंटैक्ट में आता है. ये हाइड्रोनियम आयन है. हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है. जब भी ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस बिकम हाईली अनस्टेबल. सो एज ए रिजल्ट देर इज़ टेंडेंसी कि ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे दोबारा शिफ्ट हो जाए और वाटर जो है उसका जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाए. तो फिर ये जो H है, ये H का क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड है ये H के ऊपर अटैक कर देता है और या आप कह सकते हैं कि पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H को ले जाता है. ठीक है, तो अब आपके पास आ गया CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर गया था, CH2 के ऊपर शिफ्ट कर गया था. तो जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करता है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करता है उस कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज होता है और जहाँ पे शिफ्ट करता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज रेड कलर को देखिए, रेड कलर की लाइंस को, वो H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, वाटर दोबारा बन जाएगा और आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन आ जाएगा। ये था आपका स्टेप 1। तो इसमें अगर आपको रेड लाइन वाला पार्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा समझ आना चाहिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे और भी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो यहाँ से ब्लू लाइंस हटा दी। तो अब देखिए कि ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इस H को अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खींच के ले जाना, तो इसके साथ लग जाएगा, CH3 हो गया। अब बॉन्ड जो कि यहाँ से शिफ्ट कर रहा है तो इस सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन है, सो दिस हैज़ टू बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आपके पास बच्चा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर है। तो स्टेप 2 में ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसके ऊपर वाटर जो है फिर से अटैक करता है, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देता है। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जब भी वाटर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये CH के साथ अटैच हो जाएगा, ये CH के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है। तो इसमें इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि जो एल्कोहल होता है, देखिए क्या है एल्कोहल, CH3 CH OH, लेकिन यहाँ पे HOH, एक H ज़्यादा है, आगे CH3 एक H ज़्यादा है ना, तो फिर प्रोटोन एक इसमें ज़्यादा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बच्चों की तरह समझाया जाए, छोटे बच्चों की तरह, जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड की है या नहीं की मुझे नहीं पता। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको आता है सारा, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको रिमाइंडर की ज़रूरत है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन बेचारों को +1 में किसी वजह से ट्यूशन नहीं लगाई होती। तो इसलिए वी हैव टू गिव अ लेक्चर लाइक दिस। स्टेप 3 में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल और इस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एक H ज़्यादा है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये अनवांटेड है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा और H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा, H+ जो है बाहर निकल गया। तो ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ जाएंगे, तो आपके पास फुल प्रोडक्ट आ गया, जिसे कहते हैं प्रोपेन टू ओल। सो आई एम वेरी श्योर दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्लियर? तो ये था हमारा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया, जिसकी हेल्प से हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया। ठीक, गॉट इट? तो हमने अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड्स पढ़ने हैं। अल्कीन से अल्कोहल को बनाने के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं। एक है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है? तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो है
ये है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में जो पहला स्टेप है उसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन को डाइबोरेन के साथ ट्रीट करना है, उसके हाफ मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहाइड्रोफुरैन की प्रेजेंस में। THF स्टैंड फॉर टेट्रा हाइड्रोफुरैन। ये हमने हक्कल रूल में टेट्राहाइड्रोफुरैन का स्ट्रक्चर पढ़ा था +1 स्टैंडर्ड में, टेट्राहाइड्रोफुरैन। तो इसमें हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हाइड्रोबरेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पहले स्टेप में जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हैं। बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया प्रोपीन को, तो आपको ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन नाम का सब्सटेंस मिल जाएगा। तो इसके जितने भी हाइड्रोजन है वो इसके अंदर चले जाएंगे और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप 1 होता है। दिस इज ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन जो है ये स्टेप 1 में हमें मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1। तो स्टेप 2 में ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करना है। हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपको प्रोपेन 1 ओल साथ में बोरिक एसिड मिल जाएगा। अभी अभी पीछे हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था, तो उसमें प्रोपीन में वाटर ऐड किया था तो प्रोपेन 2 ओल मिला था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोपेन 1 ओल मिल रहा है, यानी ये मार्कोनिकॉफ रूल के कॉन्ट्रेरी है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा जाता है, नोट में मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोपेन 1 ओल है, ये मार्कोनिकॉफ रूल के कॉन्ट्रेरी है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं इट्स ए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, how will you add water to unsymmetrical alkene by anti-Markovnikov rule। 1 नंबर का भी अगर आता है या MCQs में भी आता है तो आपने इसका आंसर क्या देना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से। तो हम आज अल्कीन से अल्कोहल को बनाने वाला प्रोसेस जो है वो फिनिश करेंगे। तो इस कैटेगरी में पहला था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सिल्वरिक एसिड। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और तीसरा हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन मेथड। इसमें आपने प्रोपीन की बजाय बुटीन ले ली है और ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, टेट्राहाइड्रोफुरेन है, वाटर है, स्टेप 1 है। तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन है उसमें OH ऐड हो जाएगा वाटर में से निकल के, और ये वाला जो पार्ट है CH3COOHG ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक CH3COOHG है वो हमें साथ में मिल जाता है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3COOHG, मर्क्यूरस एसीटेट मिल गया। ये स्टेप 1 है।
इसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं, मर्क्यूरिक का प्रोडक्ट और ऑक्सीजन यानी OH को ऐड कर रहे हैं। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम NaBH4 यूज़ कर रहे हैं, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो इसमें ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा, मर्क्यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, क्योंकि आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हो जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो CH3 CH2 CHOH तो है ही है, और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास ब्यूटेन 2-ओल आ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन जो है, इसमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन गिव्स अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। तो आज आप इतना कीजिए, बाकी हम कल के लेक्चर में करेंगे। आई एम वेरी श्योर मैंने बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको करवाया। आई एम वेरी श्योर कि आपको इतना समय लग गया होगा। तो रेस्ट विल टेक अप टुमारो। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। ग्रेट डे।